افطار رمضان کی اس خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان ندا سیفی آپ سب کو جہاں کہیں آپ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں میں پوری دنیا میں پورے پاکستان میں خوش آمدید کہتی ہوں اور آپ لوگوں کو بھی ساتھ شامل کروں گی ٹرانسمیشن میں. آج بھی 0213413441 اٹس ا نمبر براہ راست آپ شامل ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ اور ہمارے سوالات آپ کے سوالات اور ہماری طرف سے جوابات آپ کو ملیں گے. آج 28واں روزہ جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور اب 1 سے 2 روزے رہ چکے ہیں باقی. اب افطاری کی طرف بڑھ رہے ہیں. بہت خوبصورت گھڑیاں اور ساتیں ہوتی ہیں میں ہمیشہ سے کہتی ہوں جی. اور کیا ہی کہنا تھا ان تمام روزوں کا جو ہم نے بہت ہی زیادہ کوشش کی کہ اچھی طریقے سے یہاں پہ آپ کے سامنے پیغام اور تعلیمات پہنچا سکیں. اسلام کا مذہب کا جتنی زیادہ کوشش ہو سکی ہم نے وہ اپنی کوشش کی. اور جی روزانہ کی طرح ہمارے ساتھ یہاں پہ علماء کرام اور مہمان حضرات بھی موجود ہیں اور میں ان کی طرف چلوں گی. جی سب سے پہلے میرے پاس بیٹھے ہیں علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب اور پھر پیر شیخ وقار احمد رحمانی صاحب. دونوں معزز حضرات کو خوش آمدید کہتی ہوں. السلام علیکم. ساتھ ہی جی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر وقار فاروقی ہیں اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہے ڈسٹرکٹ اورنگی کے. ان کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں. تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر وقار فاروقی صاحب فار جوائننگ اس. ساتھ ہی بیٹھے ہیں نعت خواں اسامہ عارف اشرفی. ان کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں. اور جہاں خدا بند تعالیٰ کے رب تعالیٰ کے ذکر سے اس مبارک ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا وہاں ذکر مصطفیٰ نہ ہو ایسے کیسے ہو سکتا ہے. تو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں چاہوں گی اسامہ عارف اشرفی سے کہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. رہے جاتے ہیں یہ ارمان ہائے میرے سینے میں. رہے جاتے ہیں یہ ارمان ہائے میرے سینے میں. نہ کعبے کی گلی دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں. نہ کعبے کی گلی دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں. سنا ہے نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں. سنا ہے نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں. الہی ایک چھیٹا سا لگے ہم سب کے سینے میں. الہی ایک چھیٹا سا لگے ہم سب کے سینے میں. محمد اس طرح تشریف فرما ہے مدینے میں. محمد اس طرح تشریف فرما ہے مدینے میں کہ جیسے سورہ یاسین ہے قرآن کے سینے میں. کہ جیسے سورہ
सीने है कुरान के सीने में रहे जाते हैं ये अरमान हाय मेरे सीने में न काबे की गली देखी न पहुँचा मैं मदीने में। सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह जी। उसामा आरिफ अशरफी हदियानात पेश करने की बारगाह रसालत में सादत हासिल कर रहे थे। और नाजरीन, आज का मौजू जैसे कि मैं बता के गई थी आगाज़ में कि हम बात करेंगे आज रिश्तों के एतबार से कि हमारे दीन मज़हब में, इस्लाम में रिश्तों की क्या अहमियत बताई गई है, और अमूमी तौर पर भी हम आम अपनी ज़िंदगी में और आम तौर से जो रिश्ते हमें ज़िंदगी में मिले हैं उनके ऊपर बात करेंगे कि रिश्तों की अहमियत क्या है। वैसे तो 28वां रोज़ा है आप जैसे कि देख रहे हैं, और अब हम उसकी तरफ जा रहे हैं, अब रुखसती की तरफ जा रहे हैं इस माह मुबारक की। अब ये रुखसत हो रहा है हमसे और फिर ईद आ जाएगी एक से दो दिन के अंदर अंदर। लेकिन अब ये कि आज इस एतबार से हमने गुफ्तगू करनी है। प्लस हमारे साथ जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर वकार साहब, मैं उनकी तरफ भी जी जाऊंगी और आज उनसे भी गुफ्तगू करूंगी। उनसे मैंने बात करनी है चूँकि आपको पता है पूरी दुनिया में जी बनाया जा रहा है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, तो उस एतबार से भी जी मैंने बात करनी है। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब थोड़ी सी बात आपसे कर लूँ। जो ये हफ़्ता मनाया जा रहा है ख़ास तौर पे, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, थोड़ी सी नाजरीन को बता दें, इसको बनाने का मकसद क्या है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक जो मनाया जा रहा है वो 24 अप्रैल से स्टार्ट हुआ और 30 अप्रैल तक, ये आज जो है वो आखिरी डेट है। इसका मकसद, जो मेन मकसद है, अवेयरनेस, पब्लिक के अंदर अवेयरनेस उजागर करना कि पब्लिक जो है वो समझ सके इम्पोर्टेंस ऑफ द वैक्सीनेशन के, इम्पोर्टेंस क्या है वैक्सीनेशन की। ऐसा नहीं कि वैक्सीन अगर दी जा रही है तो लोग ये समझें कि जी फ्री में है तो इसका कोई असर नहीं है, और किसी और जगह से आ रही है तो जी ये कोई और साजिश है किसी मुल्क की साजिश है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, सिंध गवर्नमेंट ये बड़े फ़ख्र के साथ कह सकती है कि वैक्सीनेशन के अंदर हम लोगों ने जिस तरह से काम किया है। हमारे पास जो एक अभी कोविड का सीज़न गुज़रा, 2 साल जो गुज़रे हैं, उसमें हम लोगों ने वैक्सीनेशन पे जो काम किया है उसकी वजह से दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने जो जिस तरह से काबू किया है कोविड को, वो और कंट्री से बिल्कुल डिफरेंट था। जिस तरह से पाकिस्तान ने अचीवमेंट की है, अपने इकोनॉमिक्स को भी बचाया है और अपने लोगों की जानों को भी बचाया है। और इस वक्त जो है वैक्सीनेशन के अंदर हम लोगों ने 100% अचीव किया है सिंध ने कोविड वैक्सीनेशन के अंदर। तो सिर्फ अवेयरनेस जो उजागर करना है पब्लिक के अंदर। ठीक, सही है। पब्लिक के अंदर अवेयरनेस और यकीनी तौर पे वैक्सीनेशन की बहुत अहमियत है। नाजरीन, हमने देखा कोविड के दौरान जब पूरी दुनिया में पेंडेमिक की सूरत जब सिचुएशन बनी तो किस तरह एपिडेमिक आया पूरा, और किस तरह कई जानों को नुकसान हुआ, एक मजमूई तौर पे बड़ा नुकसान हुआ, जानी नुकसान जिसको कहते हैं वो। और उस सिचुएशन में उसको कंट्रोल करने में वैक्सीनेशन का बड़ा कलीदी किरदार रहा। जो लोग जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी कहा, समझते हैं कि जी वैक्सीनेशन बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से अपने कि ठीक नहीं है या नहीं हो सकती तो लेकिन वैक्सीनेशन की यकीनी तौर पे अपनी एक इम्पॉर्टेंस और अहमियत है। और क्योर करने के लिए कोई भी अगर आप चाहते हैं कि बड़ा से बड़ा जो मर्ज़ है उससे बचाव के लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। और आपका जो इम्यून सिस्टम है बेसिकली ये जो बनाया जा रहा है वीक, इसका मकसद ये जो सारे आपके वायरसेस या इन्फेक्शंस वगैरह आपको जब हिट करते हैं उसकी वजह ये कि आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए जी वैक्सीनेशन बहुत काम करती है। ऐसा ही है डॉक्टर साहब? इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि 2 प्रोसीजर होते हैं, एक होती है वैक्सीनेशन, एक होती है इम्यूनाइजेशन। ठीक है, वैक्सीनेशन वो प्रोसेस है जब आपको वैक्सीन दे रहे हैं किसी को। ठीक है, अब वैक्सीन क्यों दी जा रही है? वैक्सीन दी जा रही है इम्यूनिटी को, जैसे आपने कहा कि इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए। जब हम वैक्सीन देते हैं, वैक्सीन है क्या, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है पब्लिक का कि जी वैक्सीन क्या है, क्या क्यों दी जाती है। वैक्सीन जो है एक तरह से एंटीजन है जो बॉडी के अंदर दिया जाता है।
इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए, इम्यूनिटी डेवलप करने के दो प्रोसेस होते हैं, एक इनेट इम्यूनिटी होती है, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। इनेट वो होती है जो बॉडी के अंदर खुद मौजूद होती है, एक्वायर्ड वो होती है जो हम बाहर से बॉडी के अंदर देते हैं। तो इसमें भी एक आ जाता है आपके आर्टिफिशियल वैक्सीनेशन, जो है वो आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी को डेवलप करती है। तो उससे क्या होता है, अच्छा जी, उसके अंदर नेचुरल में जो आए, नेचुरल वो है कि जी कोई इन्फेक्शन हो जाता है आपको, इन्फेक्शन के बाद एंटीबॉडीज़ डेवलप होती हैं आपकी बॉडी के अंदर, तो वो इम्यूनिटी डेवलप कर देती हैं। यह नेचुरल तरीका है। आर्टिफिशियल तरीके में आप वैक्सीनेशन के ज़रिए या सीरोथेरेपी के ज़रिए आप देते हैं, इंजेक्ट करते हैं, जिससे क्या होता है बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाते हैं। एंटीजन एंटीबॉडीज़ जब डेवलप हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, जब भी वो बीमारी दोबारा आएगी तो उसकी सीवियरिटी इतनी नहीं होगी और वो इतनी सीवियरिटी के साथ वो एक्ट नहीं करेगी। अच्छा जी, एक वक्फे की तरफ जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।